ٹیلی فون پہ ہمارے سے سردار لطیف کھوسا صاحب ہیں. چلے ان سے بات کر لیں پھر یہ بات نا ان سے بالکل بالکل میں انٹرپٹ کرنا کہ وہ آ گئے. بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب. سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے بہت مبارک ہو آپ کو. سر آپ جیت گئے الیکشن. آپ ویسے کافی عرصے سے بڑے کمفرٹیبل تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, جیت جائیں گے, لیکن ظاہر ہے سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ لاہور کی الیکشن کا سیاست کا ایک بڑا نام ہے. تو سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں کچھ بھی نہیں, بڑے بڑے نام جو ہیں وہ خش و خساب کی طرح بہ گئے ہیں, اور عمران خان کا جو گراف ہے اس وقت آپ نے محسوس کر لیا ہوگا. آئی تھنک لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان, اور میرے خیال میں پلس جو ہے اب قوم سب کو نظر آ گئی ہے کہ پلس جو ہے عوام کی کیا ہے. عوام جتنا سپریس کیا گیا ہے, جتنا جبر کیا گیا ہے, جتنا ظلم کیا گیا ہے, ہمارا تو سلوگن ہی ایک تھا کہ جو ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے, اور عوام نے اس پر بیک کہی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ وہ الیکشن تھا جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس تو سمبل انہوں نے بلا چھین لیا تھا, لوگ سمبل کے پیچھے دیوانہ وار جو ہے متلاشی تھے. اور میرے نیچے 4 MPs تھے, ان کے میں نے جو سمبلز تھے, مختلف سمبلز تھے, باہر گیپ ان کی جو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایک بلہ مانگ رہے تھے, انہوں نے جہیز کا پورا سامان دے دیا, اور اس میں جو ہے اس میں پھر متلاشی ہونا, پھر کسی کو جو ہے وہ لوٹا ہے, تو کسی کا حکا ہے, تو کسی کا بستر ہے, تو کسی کا بیڈ ہے, تو کسی کا پیالہ ہے. مطلب ہے کوئی انت کی تماشے ہمارے ساتھ کیے گئے. لیکن باہر گیپ میں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریویل کر کے. سر 2 چیزیں جی جی بالکل. کھوسا صاحب السلام علیکم, رؤف کلاسرا بات کر رہا ہوں. سر مبارک ہو آپ کو بہت سارے الیکشن جیتنے کی. سر سونا صحیح تو آپ کو مبارک ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے بڑا کرم کیتے. نیاز مندیاں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ صاحب ظاہر اس وقت سے انڈیپینڈنٹ موسٹلی جو جیت رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے 90+ جو ہیں وہ PTI بیکڈ ہیں, ایک بہت بڑا گروپ ہے, بلکہ اگر انڈیپینڈنٹ جو ہیں دے آر ان لیڈنگ پوزیشن. تو دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں, سٹوریز آ رہی ہیں کہ شاید ممکن ہے کہ یہ زرداری صاحب جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اگر کوئی حکومت بنانے کی کوشش کریں. آپ زرداری صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں, ان کے گورنر رہے ہیں, ان کے منسٹر رہے ہیں, ان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے کیسز آپ نے لڑے ہیں. تو آپ کو کوئی پاسبلٹی لگتی ہے کہ کسی سٹیج پہ آپ لوگ نواز شریف صاحب کا راستہ روکنے کے لیے زرداری صاحب اور آپ کا جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ, یہ کوئی الائنس میں جا سکتے ہیں کہ حکومت بنانے کی بات چیت ہو سکتی ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنا گروپ قائم رکھیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ ممبرز ہیں, اور تحریک انصاف ایگزسٹ کرتی ہے ایز اے پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن. آرٹیکل 17 میں ہماری کانسٹیٹیوشن کو کسی نے بین نہیں کیا, اور نہ ہی الیکشن کمیشن کا اختیار تھا. انہوں نے ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کو کل عدم کر کے ہم سے سمبل ضرور چھین لیا. تو سمبل کا ووٹ تو تھا ہی نہیں, ووٹ تو عمران خان کا تھا, سیدھی سی بات ہے, یا PTI کا تھا. PTI بھی ایگزسٹ کرتی ہے, عمران خان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم پہلا تو یہ مس نومر ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا ہی غلط ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر وہ انڈیپینڈنٹ آپ بار بار کہتے ہیں, اور الیکشن کمیشن چونکہ ہماری بائسڈ ہے, ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک ریلی ونگ بنی ہوئی ہے ان حلقوں کی جو ہمیں جو ہے لنڈن پلان کے تحت مائنس کرنے کے اوپر تلی ہوئی تھی. چلے اس کا تک بھی مان لیا جائے تو 3 دنوں کے اندر ہم آلریڈی جو ہے پہلے ہی دن ہم PTI کے باقاعدہ رکنیت میں شامل ہو جائیں گے, اس لیے کہ جن کو سمبل انڈیپینڈنٹ کے حیثیت سے دیے گئے ہیں ان کو چوائس ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں. پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ایک بات کلاسرا صاحب ذہن میں رکھیں, پارٹی بینڈ نہیں ہے. تو اسی لیے اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کے ایک پیپلز پارٹی 3 پیز ہے, ایک 4 پیز ہے, ان کا بھی بات آپ کی سمجھ آ گئی. کھوسا صاحب اب اگلی بات الائنس کی. زرداری صاحب کو جیسے میں نے کہا آپ خان صاحب کے بڑے قریب ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں, زرداری صاحب سے پرانی آپ کی کامریڈ شپ رہی ہے. آپ کوئی اس طرح کی کوشش کریں گے کہ PTI کے لوگ جو ہیں جو آپ جیتے ہیں ادھر سے
जरदारी साहब की पार्टी भी जीती हुई है, तो अलायंस की मैंने पूछा है कि अगेन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की पार्टी या उसको जो इंडिपेंडेंट के हैं पीटीआई के जितने भी और जरदारी साहब का कोई पॉसिबल अलायंस के चांसेस लगते हैं आपको? आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे या पोजीशन में बैठेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, इसलिए इम्पॉसिबल वाला तो बात में नीचे से निकाल दीजिएगा खाता। अब ये क्या शेप आउट होता है, मेरा पहला बयान ये है कि इमरान खान को मुखलसी दी जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे और ये प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, और इसको इमीडिएटली टर्मिनेट करके, चाहे वो आर्टिकल 45 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली किया जाए, चाहे वो अपीलें 1 हफ्ते के अंदर समाप्त की जाए, क्योंकि जाहिर है कि अपीलें जिस तेजी से ये सजाएं हुई हैं उसी तेजी से ये अपीलों में बरी होगा इमरान खान। और एक वो तो बिलावल कह चुके हैं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ खोसा, वो तो बिलावल ने तकरीर में कहा था कि मैं अगर वजीर आज़म बनता हूँ तो मैं सबसे पहले पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं, एंड ही वाज रिफरिंग टू पीटीआई गैस जो इस वक्त गिरफ्तार हैं केसेस हैं, बिलावल तो बहुत पहले ये बात कह चुके हैं जो बात आप कह रहे हैं कि केसेस वगैरह नहीं होने चाहिए, हमारे लोग रिहा होने चाहिए, खान साहब या दीगर। तो बिलावल है ऑफर्ड, मैंने कहा 2-3 दफ़ा वो कह चुके हैं। देखिए, बिलावल साहब ने बाद में मैंने उनका सुना था, वो कहते थे जहां तक केसों का ताल्लुक है ये तो अदालतें ही जाने, तो वो थोड़ा सा उसमें बाद में मेरे ख्याल में उनका सॉफ्टवेयर को फिर ट्यून डाउन किया गया था। जो भी है, जिस तरह से भी है, मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हम इंडिपेंडेंटली एज ए पॉलिटिकल पार्टी 129 तो ऑलरेडी हमारे हैं, और हमें जब ये जाते हैं तो फिर हमें उसी रेटेबली हमें जो है स्पेशल सीट्स यानी खवातीन की और जो माइनॉरिटीज की हैं वो भी 320 में से अपना 230 में से हिस्सा मिलेगा हमें, तो उसमें से भी हम जो 170 पे पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल करीब है उस मैजिक फिगर। मतलब आप खोसा साहब हुकूमत बनाए बैठे हैं, फिर तो आपकी जो कैलकुलेशन बता रही है, आप तो अपना वजीर तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है इस कैलकुलेशन के तहत आपका? लेकिन इमरान खान है, लेकिन अगर हमें किसी वजह से मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो हम प्रेफर करेंगे कि कोलिशन की बजाय हम ऑपोजिशन में बैठे, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब मौजूद है, वो सवाल करना चाह रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं, तो जी मती साहब। खोसा साहब बहुत मुबारक हो, मतीउल्लाह जान है, आपने इलेक्शन जीता। तो थोड़ा सा कुछ कानूनी सवाल थे जो मेरे ख्याल में आपके अलावा पीटीआई में अभी कोई इनका जवाब नहीं दे सकता। उनमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपने कहा कि आपके पास 3 दिन हैं किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने के लिए, तो क्या वो सियासी जमात जो है वो पार्लिमानी जमात कहलाएगी, या पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें मौजूद हैं आपने उनको ज्वाइन करना है, या पार्लियामेंट से बाहर की जमातें, मतलब कौमी असम्बली में अगर पीटीआई है ही नहीं तो आप क्या पीटीआई को ज्वाइन करके पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे सकते हैं? और वो पार्लिमानी पार्टी से मुराद क्या होगी? क्या आप एक सजा याफ्ता एक अपने लीडर की हदायत पे अमल करेंगे, या पार्लिमानी पार्टी अगर बनती है कौमी असम्बली के अंदर तो आप उसकी हदायत पे अमल करेंगे? एक तो मतीउल्लाह साहब, आपको पता ही है कि सेनेट में पीटीआई की मौजूदगी है एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी, तो इसलिए जब मैंने कहा कि पार्टी एग्जिस्ट करती है तो सेनेट में है, तो नेशनल असेंबली तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए जब नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन होगी तो हम लोग लामाला पीटीआई के एमएनएस बन जाएंगे, और अगर कोई इबहाम है तो हम पहले दिन ज्वाइन भी कर लेंगे। तो इसलिए वो पार्टी ही में होगा कि पीटीआई में एमएनएस जो है वो जितनी तादाद 129 की है, और फिर जब हमें माइनॉरिटीज और वो मिलती हैं, विमेन मिलती हैं, तो हम 170 पे पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये है कि वो वहां हमारी मौजूदगी होगी। फिर जो फैसले करती है वो पार्लिमानी पार्टी करती है, वो पार्टी नहीं करती है। ये आपने फैसला सुप्रीम कोर्ट का देख लिया, जो चौधरी परवेज इलाही साहब का और चौधरी शुजात साहब का वो टिफ ऑफ चली थी, उसमें चौधरी शुजात साहब ने कुछ और लिख कर दिया था एज हेड ऑफ द पार्टी, जबकि पार्लिमानी पार्टी चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक और फैसला किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला जो होगा वो उस डिफेक्शन क्लॉज को रेगुलेट करेगा। तो वो आपके सामने नजीर मौजूद है, माशाल्लाह, आपसे ज्यादा ये कौन समझता है। तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी तो बन ही नहीं सकती ना कौमी असम्बली के अंदर, जब तक वो पार्टी कौमी असम्बली के अंदर पहले से मौजूद नहीं है। तो ये एक नई पार्टी आप बनाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, क्या होगा? क्योंकि पीटीआई तो अभी कौमी असम्बली में नहीं है, तो पार्लिमानी पार्टी कैसे बनेगी?
ओ भाई अभी तो कौमी असेंबली है ही नहीं, तो जब हम कौमी असेंबली में बैठेंगे तो पीटीआई पार्लिमानी पार्टी भी बन जाएगी और पीटीआई पार्टी एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। यही तो मैं कह रहा हूं। आपको 3 दिन के अंदर जो आपने फैसला करना है 3 दिन के अंदर, तो कौन सी सियासी जमात को आप ज्वाइन करने लगे? जी नसर मलिक साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं। जी मलिक साहब। पीटीआई एग्जिस्ट। लतीफ खोसा साहब, नसरुल्लाह मलिक बोल रहा हूँ। खोसा साहब, इलेक्शन एक्ट 2017 का जो 92 रूल है वो ये कहता है कि जो इंडिपेंडेंट्स जो होंगे दे मे ज्वाइन, शेल ज्वाइन का लफ्ज नहीं है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूरी शायद नहीं है उनके लिए, कंपल्सरी नहीं है कि वो लाजमी ज्वाइन करें। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप आज़ाद हैसियत से जो है एक ग्रुप बना के कौमी असम्बली में बैठ जाएं और उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर दोबारा से अपने आप को जो है वो पीटीआई डिक्लेयर कर दें कि हम जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है ये पीटीआई की है? सर ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हम क्यों अपने जो है स्पेशल सीट्स को हम जाया करें। आपको किसने कहा है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपनी स्पेशल सीट्स को इसी तरह जो है हवा में बखेव कर फेंक देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स को तो स्पेशल सीट नहीं मिलती हैं। तो इसलिए हम एज ए पार्टी एग्जिस्ट करते हैं, हम एज ए पार्टी ही पार्लियामेंट उसमें बैठेंगे नेशनल असेंबली में, और अगर ये जो 3 दिन वाली शिक है उसको भी हम साथ ही साथ कर लेंगे, ताकि पार्टी पहले दिन और फिर जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर उसी की रेटेबली आपको स्पेशल सीट्स भी मिलती हैं, चाहे आप ज्वाइन करें वो भी एडिशन होता चला जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं पार्टीज के? आपके जमात इस्लामी ने भी नजर रखी हुई है, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने भी नजर रखी हुई है कि हमारी तरफ आ जाएं, बाकी कई हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं सर? माफ कीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारा, सिर्फ ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये लेकिन वो 3 दिन में तो मुमकिन नहीं सर, 3 दिन में तो वो मुमकिन नहीं है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बजे 3 दिन के अंदर तो मुमकिन नहीं है वो। आप फिर समझ ही नहीं रहे मेरी बेसिक बात आर्गुमेंट को। मैं बदकिस्मती से कासिर हूं समझाने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, सबसिस्ट करती है आईनी तौर पर, उसे कभी बैन नहीं किया गया। तो हम जब सेनेटर हमारे पीटीआई के हैं तो नेशनल असेंबली जब बैठेगी तो हम उसी दिन पीटीआई के ही अरकान कहलाएंगे। तो ये भी कह दीजिए, पूछिए प्लीज। खोसा साहब, लगता ये है कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आपको भी मेरी जैसी कुछ बात लग रही है, नहीं लग रही? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में अवाम ने कौन सा फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी पल्स जो है लोगों की उसके बरक्स नहीं जाती है। ये जो बगलें झांकती रही है पीडीएम और ये सारा का सारा माशाल्लाह तख्त लाहौर वाले, खोसा साहब बसद एहतराम, सुप्रीम कोर्ट पल्स के मुताबिक फैसला देगी या कानून के मुताबिक फैसला देगी? ये पल्स के मुताबिक फैसला नहीं देती है, बल्कि कानून के मुताबिक भी नहीं देती है। अनफॉर्चुनेटली जो फैसले लेटली आए हैं और जो पहले फैसले जस्टिस मुनीर से शुरुआत हुई हैं, भुट्टो के फांसी से शुरुआत हुई हैं, जफर अली खान के फैसलों से शुरुआत हुई है, माफ कीजिएगा, लॉ ऑफ नेसेसिटी को जिस तरीके से इम्पोज किया गया पाकिस्तान की तबाहकारी के लिए, माजरत के साथ मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है इस अमर को। तो ये मत कहें कि वो आपने खोसा साहब अभी बात करते करते रुक गए थोड़ी सी। आपने तख्ते लाहौर का ताना दे रहे थे, लेकिन अब तो लाहौर वालों ने आपको जितवाया है सर। अब आपका तो कम से कम ताना नहीं बनता है कि आपको तो सर पे बिठाया है, आपको वोट दिए हैं, आपको तो इज्जत दी है सर। जाति उमरा कह लें भाई, जाति उमरा कह लें। तो जरा मती साहब सवाल करना चाहते हैं। जी मती साहब, कोई कानूनी सवाल आपके पास है या खोसा साहब की गुफ्तगू से बस आप तकनीकी एतबार से? खोसा साहब, जब तक आप पार्टी का ऐलान करते हैं, अभी 3 दिन हैं, या पार्टी नई बनाते हैं या पीटीआई को ही दोबारा एस्टैब्लिश करते हैं, तो उस वक्त तक आपके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं क्या वो आज़ाद हैं अपने फैसलों में किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि खसूसी नशिस्तें भी तो सिर्फ जीती हुई पार्टीज को मिलती है ना, जीते हुए आज़ाद उम्मीदवारान के लिए तो नहीं है खसूसी नशिस्तें। मेरी जान, तुमने जब करना होता है ना तो तुमने उल्टा ही सवाल करना होता है। मैं सीनियर नायब सदर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं एपेक्स कमेटी का मेंबर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है,
उसको बैन किसी ने नहीं किया, ना कानूनी आईनी तौर पर। सो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ, और जितने हमारे मेंबर बने हैं, भले वो बल्ले के निशान न पे हो, मैं के पर बना हूँ, चिड़िया पर बना हूँ, पाक्सा पर बना हूँ, हुक्के पर बना हूँ, जिस पे बना हूँ, मैं पीटीआई का हूँ। इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। हमारे डिफेक्शन क्लास लागू होती है, डिफेक्शन क्लास लागू होती है आपके मेम्बरान पे 63A? 100% लागू होगी जब पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। अब पार्लिमानी पार्टी तब फैसला करेगी जब हम हल्फ लेकर पार्लिमानी अपनी पार्टी बना लेंगे कौमी असेंबली में। तो 3 दिन तो गुजर जाएंगे, 3 दिन तो गुजर जाएंगे। ओ भाई 3 दिन की जरूरत नहीं है, ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर जरूरत भी हो, अगर अदरवाइज वी आर मेंबर्स ऑफ पीटीआई। ये इंडिपेंडेंट की रट आपने लगा रखी है माजरत के साथ, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हम जितने इलेक्ट हुए हैं हम पीटीआई के ही जो है कारकुन है, मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक है सर, कानूनी तशरीह है, जाहिर है वकला ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। नहीं, वो जिस दुनिया में रहना चाहे रह सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में आप मौजूद हैं जी। देखिए, मेरा ख्याल है सर पहले मती साहब से हम शुरू करें। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए कुछ